हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। एक बार फिर साडे YouTube चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ 500 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। What is the maximum number of seats from the Raj Sabha in India? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀਟਸ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 250 250 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 238 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਤੇ यूटीज ਤੋਂ ਇਲੈਕਟਡ इनडायरेक्टली और 12 जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के कितने मेंबर नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, का आंसर लिखोगे 12। अगला क्वेश्चन देख लेने। अगला क्वेश्चन की कहना पे कहना हाउ मेनी मैक्सिमम सीट्स आर अनमार्क्ड फ्रॉम द लोक सभा इन इंडिया? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 552 552 ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਮਿਨੀਮਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣਗੀਆਂ 545, मिनिमम 545 और मैक्सिमम 552। अगला क्वेश्चन देख लेने की कहना पे कहना बाय विच एक्ट इट वाज अरेंज्ड दैट द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वुड बी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल? की कहना पे किस एक्ट द्वारा यह व्यवस्था की गई सी कि मद्रास ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਦੇ गवर्नर जनरल के अधीन होंगे? तो आंसर देख लेना। आंसर आऊगा अपने को रेगुलेटिंग एक्ट 7073, रेगुलेटिंग एक्ट 7073 का आंसर देख लेने। अगला क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू बी अपॉइंटेड अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 7073? 1773 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ। ਮੋਸਟ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। नेक्स्ट क्वेश्चन which preacher got the right to preach religion in India through the Charter Act of 1813? 1813 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੈਰਿਸਨੇਟਡੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਕੀ ਹੈ। The language of the preamble in the Indian Constitution has been taken from which country? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ what is the type of our Indian Constitution? ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਹੈ? मतलब किस टाइप ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਸੈਮੀ ਫੈਡਰਲ और फेडरल। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਹੈ फेडरल स्ट्रक्चर है अपने संविधान का, जो पावर्स है वो सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दे विच आपस दे विच ये डिस्ट्रीब्यूट कीतियां गईयां। और स्ट्रोंग कौन हुंदा है? स्ट्रोंग हुंदा है सेंटर, मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट हुंदी है वो हुंदी है अपने स्ट्रोंग। नैक्सट देख लेने की कहना पे for whom the constitution has made provision for reservation of seats in the Lok Sabha and the legislative assembly? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ which article of constitution of India is related to uniform civil code? करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है ये, और ये पेपरां दे विच एक दो बार हुण पूछा जा चुका है, अगे भी पूछा जाऊगा। भारत के संविधान का किहड़ा अनुच्छेद यूनीफॉर्म सिविल कोड नाल संबंधित है? तो आंसर देख लेना। आंसर आऊगा अपने कोले आर्टिकल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन which article of the constitution is related to the constitutional amendment process? संविधान का किहड़ा अनुच्छेद संविधानक शोध प्रक्रिया नाल संबंधित है? तो आंसर देख लेना। आंसर आऊगा आर्टिकल 368। अगर सरल शब्दों के विच कहा जाए तो अमेंडमेंट किहड़े आर्टिकल दे विच हुंदी है? तो आर्टिकल 368 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नैक्सट क्वेश्चन
देख लेने हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान की केड़ी धारा राष्ट्रपति के महादोष नाल संबंधित है? तो आंसर देख लेना, आंसर आऊगा अपने को आर्टिकल 61। 61 आर्टिकल के अंडर तुसी प्रेसिडेंट नू इंपीचमेंट कर सकते हो, उन्होंने हटा सकते हो या उन्होंने हटाने की आवाज उठा सकते हो। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड? भारतीय संविधान की प्रस्तावना नू कितनी बार सोधिया गया है, मतलब अमेंडमेंट दे विच कितनी बार सोध की गई है या अमेंडमेंट की गई है? आंसर देख लेना, आंसर आऊगा अपने को एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेने की कहता है। नेक्स्ट है अपने को विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन इफ इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन द कंट्री? देश विच इमरजेंसी घोषित होने के बावजूद भी किहड़े मौलिक अधिकारां नूं मुअत्तल नहीं किया जा सकता? तो आंसर आऊगा अपने को आर्टिकल 20 ते 21 है जो सस्पेंड नहीं होंगे गए, ठीक है ना। वी है प्रोटेक्ट टू रिस्पेक्ट द सिविलाइजेशन ऑफ मैंस एंड प्रोटेक्ट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेने की है, which article of the constitution of India authorize the president to seek the opinion of the Supreme Court in specific categories of cases? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 143, मतलब एडवाइजरी ओपिनियन 143 143 आर्टिकल के अंडर है जो है अपने प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट तो जो है सलाह मशवरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द हाई कोर्ट टू राइट द इशू रिट? मतलब की है भारत के संविधान का केड़ा अनुच्छेद हाई कोर्ट नूं रिट जारी करने का अधिकार दिंदा है? तो आंसर आ जाऊगा अपने को 226। और अगर सुप्रीम कोर्ट आवे तो सुप्रीम कोर्ट का आंसर आऊगा आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसीडर्ड द क्रिएटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान का निर्माता किसनूं मन्निया जाता है? एक क्वेश्चन सारिਆਂ ਨੂੰ आंदा रहूगा, आंसर आऊगा डॉक्टर BR अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which part of Indian constitution are the provision for the union territories? भारतीय संविधान के किहड़े हिस्से विच केंद्र शासित प्रदेशों लई उपबंधित हैं? आंसर देख लेने अपने को आंसर आऊगा पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन? भारत संविधान के किहड़े हिस्से विच फंडामेंटल ड्यूटीज दिते गए हैं? तो आंसर देख लेना, आंसर आऊगा पार्ट नंबर 4A, पार्ट नंबर 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेने की है, हु है सुप्रीम कमांड और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस? भारतीय सुरक्षा बलों की सुप्रीम कमांड किस कोल है? तो आंसर देख लेना, आंसर आऊगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और टिल टाइम जो अपने प्रेसिडेंट है ये उन्होंने पिक है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट देख लेने की है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन on ground of religion, race, caste, sex, place of birth and any of them in which article in the is the given? देखो की है डिस्क्रिमिनेशन का किसी नाल भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाऊगा, चाहे वो किसी रिलीजन के आधार पर है, रेस से, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ किसी भी आधार पर जो है किसी नाल कोई भेदभाव नहीं किया जाऊगा। आ चीज किहड़े आर्टिकल दे विच है? तो आर्टिकल है अपने को 15 आर्टिकल दे विच ये चीज दी गई है अपने को। नेक्स्ट देख लेने की है, फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड इन विच आर्टिकल आर सिमिलर टू आर्टिकल 21A? मौलिक कर्तव्य शामिल हैं जिस विच अनुच्छेद 21A दे समान हैं। मतलब केड़ा फंडामेंटल ड्यूटीज है जेड़ी आर्टिकल 21A दे बिल्कुल सिमिलर है? 21A दे विच की अपनी पर्सनल लिबर्टी? तो आंसर आऊगा आर्टिकल 52A फंडामेंटल ड्यूटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेने की कहना है, विच फंडामेंटल ड्यूटी प्रोविजन स्टिपुलेट्स दैट ऑल इंडियन शुड शो रिस्पेक्ट टू द इंडियन नेशनल फ्लैग एंड द इंडियन नेशनल एंथम? ਕਿਹੜੀ बुनियादी ड्यूटी व्यवस्था ਇਹ निर्धारित करती है कि सारे भारतीयों ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ सम्मान करना चाहिए है? तो आंसर आ जाऊगा अपने को
आर्टिकल 51A मतलब पहली फंडामेंटल ड्यूटी है अपनी, ए ड्यूटी जिन्होंने कह सकते हो, और के तक अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, मतलब 11 अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज है। पहली है ए जिहदे अंदर की है कि आपां नूं अपने जो नैशनल फ्लैग ते नैशनल एंथम दा की है इज्जत रिस्पेक्ट करनी पऊगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेने की है, in which article it is mentioned that directive principle of state policy are not enforceable by the court। किस लेख विच ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 37। मतलब डीपीएसपी ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ कोर्ट अपने हिसाब के नाल लागू नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ। भारत के राष्ट्रपति केवल दी लिखती सिफारिश ते ही राष्ट्रीय इमरजेंसी का ऐलान कर सकते हैं। तो आंसर देख लेना, आंसर आऊगा अपने कोले आ कैबिनेट कंसिस्टिंग ओनली ऑफ मैंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट, मतलब यूनियन कैबिनेट के जो मंत्री होंगे उन्होंने की सिफारिश से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेने की है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इमरजेंसी इम्पोज ड्यू टू वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन ऑफ एंड आर्म्ड रेबिलियन। भारतीय संविधान का किहड़ा अनुच्छेद युद्ध, बाहरी हमले अते हथियारबंद बगावत करन लगाई गई इमरजेंसी नाल संबंधित है। तो आंसर आऊगा अपने कोले आर्टिकल 352। तीन अपने को जो है 3 एमरजेंसीज है अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच, 352, 356, 360 और 360 एमरजेंसी अज तक इंडिया दे विच कदे भी नहीं लगी। अज दी वीडियो दे विच इन्ने ही क्वेश्चन, उम्मीद करदा हां वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी ने साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है सारिਆਂ ਨੂੰ चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, वीडियो नूं लाइक कमेंट शेयर करो। और अगर किसी ने साडे टैलीग्राम चैनल फ्रीद एजुकेशन सर्विसेज नूं ज्वाइन नहीं किया तो हुणे ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि पीपीटी की जो PDF है वो उत्थे ही मिलती है तुहानूं। और अगर साडा पेज है फ्रीद एजुकेशन फ्री FDK के नाम से है, इनू भी जाके तुसी इंस्टाग्राम ते फॉलो कर लो। होर नवीं वीडियो क्वेश्चनस तुहाडे अगे लैके आंदे रहांगे। अज दी वीडियो दे विच इन्ने ही क्वेश्चनस। बहुत बहुत धन्यवाद।